10th English medium, Science 2, Animal Classification. So in this chapter we are going to study about history of animal classification, new method system of animal classification, kingdom, Animalia. So let's begin. Can you recall which criteria used for classification of organism? See, now there are the various criteria, okay, through which you can refer the animal classification. For example, first is depend upon the cells. Okay, some organisms are unicellular and some are multicellular. Unicellular means a single cell and multicellular means more than one cell. Second, some organisms contain the nucleus and some organisms do not contain the nucleus. Okay, in some organism, third, there are the presence of cell wall. In some organism there is no cell wall. देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं एंड सम ऑर्गेनिजम्स आर हेटरोट्रॉपिक. Now what is autotrophic? Means they prepare their own food and some depend on the other for their food. Okay, so these are the classification of these are the criteria for the classification of organism. Okay, you have studied the classification of living organism in earlier classes. The living organism present around us are mainly plants and animals. We have studied the criteria of this classification. With the help of that, complete the following chart. Now see, you have to see this chart, okay, and you have to write the whatever the things are there in this where it is blank. So first thing, living organism is divided into two types. One is prokaryote, okay, prokaryote, 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 and second is eukaryote. So in box you will write eukaryote. Okay, so these are the things. Now prokaryote further divided into a kingdom Monera, and eukaryote divided into two type of organism. One is unicellular, which has single cell, and one second is multicellular, means more than one cell. Okay, unicellular में एक kingdom आता है जिसका नाम है Protista, PROTISTA, प्रोटिस्टा. इसका मतलब होता है इनिशियल ऑर्गेनिज्म. प्रो मतलब इनिशियल. Okay, Protista. Now multicellular organism divided into two part. One with the cell wall, जिसके पास cell wall है, cell wall present आप लिख सकते हैं. Okay, cell wall present, and without cell wall. और second में without cell wall. Okay, so these are the things you can also note down and you can write in your textbook. Correct? Next, further, cell wall and without cell wall. Okay, now those with the cell wall can be, now जिसके पास cell wall है वो further divided into two types. One is autotrophs and second is heterotrophs. मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे autotrophs and यहाँ पे आप लिखेंगे heterotrophs. Okay, and this autotrophs means kingdom Plantae. Okay, where they can prepare their own food, and where heterotrophs is like a kingdom Fungi, where they depend on the other for their food. Clear? Okay, now let's begin further. Can you recall how our plants are classified? See, plants are classified based on the various specification, like in some plants there is a presence of seeds, in some plant there is absence of seed. Some plants are monocotyledons and some plants are dicotyledon. देखिए, plants इस पे भी डिपेंड करता है कि हाउ देयर टिश्यू इन द प्लांट्स कैरी द फूड और वाटर. ओके, सो दिस इज द वे हाउ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड. We have studied the plants classification in last year. It helps us to understand the diversity of plant around us. You must be looking variety of animals around you. Some animals are too small where some are too big. Some animals are terrestrial. Terrestrial means those animals which are सर्वाइविंग ऑन द लैंड. ओके, जो ज़मीन पे रहते हैं उसे टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं. वेयर आर सम आर एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं. सम एनिमल्स क्रॉल ऑन द लैंड, जो ज़मीन पे चलते हैं, क्रॉल करते हैं, रेंगने वाले. सम स्विम्स इन वाटर, सम फ्लाई इन द एयर, जो उड़ने वाले. जो सम एनिमल्स हैव स्केल्स ऑन द स्किन लाइक स्नेक, वेयर एज सम हैव द फेदर और हेयर्स लाइक ह्यूमन हैव अ हेयर ऑन देयर बॉडी एज वेल एज द बर्ड्स हैव द फेदर ऑन देयर body. In this way, there is a huge diversity among the animal too. According to the recent study, estimated number of animal species on the earth is approximately 7 millions.
It is impossible to study each and every species. However, the group and subgroup of animals are formed depending upon the similarities and difference. It will take it very easy to study such vast variety of animals. देखिए 7 मिलियन स्पीशीज है, ठीक है, सबको स्टडी करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. सो उसके लिए उसको एक पर्टिकुलरली क्लासीफाई किया है सो दैट इट इज़ वेरी इजी टू स्टडी. See, this is the definition of animal classification. Formation of group and subgroup of animal depending upon the similarities and difference among the animal is called animal classification. Okay, it is important, asked in examination. So this is the definition. Now, history of animal classification. Time to time different scientists have tried to classify the animals. देखिए हमेशा समय के अनुसार बहुत सारे साइंटिस्ट ने एनिमल क्लासीफाई करने की कोशिश की है. Greek philosopher Aristotle was the first to perform the animal classification. There was a philosopher whose name was Aristotle. Okay, he first time performed the animal classification. What he have done? Aristotle classified the animal according to the criteria like body size, habits and habitat. देखिए उन्होंने किस तरह से एनिमल को क्लासीफाई किया, वो डिपेंड किया. देखिए बॉडी साइज. ओके, some animals are too small, some animals are small, some animals are big and some animals are too big. उनकी बॉडी साइज़ के ऊपर एनिमल को क्लासीफाई किया. सेकेंड, हैबिट्स, ठीक है, उनकी क्या हैबिट्स है. थर्ड इज़ हैबिटेट्स, कहाँ रहते हैं, ठीक है, किस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं. तो ये तीन बातों पर एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया एनिमल को. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल. फर्दर एज पर द न्यू डेवलपमेंट इन साइंस रेफरेंस व चेंज एंड देयर बाय द क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन टू. लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, साइंस आगे बढ़ते गए, तो उस समय क्या हुआ कि देर वॉज सम चेंजेस हैव टेकन प्लेस. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्लासिफिकेशन करने में भी चेंजेस आने लगे. क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय एरिस्टोटल इज नोन एज आर्टिफिशियल मेथड. बिसाइड एरिस्टोटल, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फॉलोड बाय थियोफेरेस्टस, प्लिनी, जॉन रे, लिनियस एक्सेट्रा. देखिए क्या होता है कि जिस तरह से एरिस्टोटल ने एनिमल का क्लासिफिकेशन किया, वो मेथड को आर्टिफिशियल मेथड बोलते हैं. वाई आर्टिफिशियल मेथड? देखिए एक एग्जांपल से समझिए इसको, कि जैसे एग्जांपल इफ़ आई कंसिडर बैट, ठीक है, चमगादड़ जो होते हैं, ठीक है, जो बैट जो होते हैं वो उड़ने वाले हैं. ओके, बट द बैट कंटेन द मेमोरी ग्लैंड्स, वो मैमल्स में आते हैं. तो बैट को अगर हम लोग, वो उड़ने वाले हैं, तो हम लोग एरिस्टोटल ने क्या बोला कि जो उड़ने वाले हैं वो सभी बर्ड्स है, तो वो बर्ड की क्राइटेरिया में चला जाएगा बैट, ठीक है. बट उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स है, वो मैमल्स में आते हैं, वो बर्ड्स में नहीं आते बैट, ठीक है, तो वो अलग हो जाता है. तो इस तरह से ये जो एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया मेथड, ठीक है, वो खाली आर्टिफिशियल मेथड था, नेचुरल मेथड नहीं था, ठीक है. तो उस हिसाब से अगर एरिस्टोटल के हिसाब से चले तो बैट क्या हो जाएगा, एक बर्ड हो जाएगा, बट वो मैमल्स है बेसिकली, ठीक है, वो बर्ड की क्राइटेरिया में नहीं जाएगा. तो एरिस्टोटल की थियरी गलत हो जाती है यहाँ पर. सो देर आर द अदर मेथड टू स्पेसिफाई द क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है, डिटेल स्टडी किया. Later on, natural system of classification was followed. Natural system of classification was based on the various criteria like body organization, type of cells, chromosomes, biochemical properties, etc. देखिए बाद में दूसरे मेथड, मतलब नेचुरल सिस्टम से एनिमल को क्लासीफाई करने की कोशिश की गई. By the time system of classification based on evolution was also brought into practice, it was used by Dobbs, Hansky and Mayer. Recently Carl Woos was proposed the animal classification. बाकी दूसरे साइंटिस्ट ने भी अलग अलग तरीके से एनिमल को क्लासीफाई किया. देखिए मैमल्स क्या होते हैं, किस तरह से क्लासिफिकेशन किया एनिमल्स का. ऑल दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन फर्दर lecture, okay, in this chapter itself. So first we'll see, let us see first thing. First is benefits of animal classification. First thing, now here what they have, the study of animals becomes convenient. Why there is a benefit of animal classification? क्यों ज़रूरत है एनिमल की क्लासीफाई करने के लिए? देखिए क्योंकि देखिए फर्स्ट रीज़न है कि एनिमल्स की स्टडी करना ईजी हो जाता है, इट बिकम्स कन्वीनियंट. ओके, नाउ सेकेंड, व्हाट इज़ द सेकेंड रीज़न? स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर एनिमल ग्रुप. देखिए क्या होता है कि अगर एनिमल का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, तो कुछ एनिमल्स की स्टडी करने से ही बाकी सब एनिमल्स के बारे में जानकारी मिल जाती है वो ही ग्रुप के. तो सब एनिमल्स पढ़ना या स्टडी करना ज़रूरी नहीं है. थर्ड, इट गिव्स द आइडिया अबाउट द एनिमल इवोल्यूशन. नाउ व्हाट हैपन हियर कि व्हेन डज द एनिमल हैव बीन ओरिजिनेटेड, वेयर इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड, तो उससे एक आइडिया मिल जाती है उसका इवोल्यूशन. नेक्स्ट, एनिमल्स कैन बी ईजिली आइडेंटिफाई विद अ ग्रेट एक्यूरेसी. उनकी डीप स्टडी की जा सकती है. फिफ्थ, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विद द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक एनिमल से दूसरे एनिमल का क्या रिलेशनशिप है,
Okay, that we can study with the help of this animal classification. 6. It helps to understand the habitat of each animal and its exact role in the nature. It also help to understand us कि उनके habitat, उनके environment में कौन से environment में वो रहते हैं, ठीक है, क्या खाते हैं, ठीक है, everything we can study with the help of animal classification. And 7th, it helps to understand the various adaptations shown by the animals. इसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया कि उन्होंने क्या क्या एडेप्टेशन किए, उनमें क्या बदलाव किए उनकी बॉडी में, तो वो भी हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. Okay, now initially in olden days there was a method to identify the animal classification. वो method क्या थे that we are going to study. See, वो method था traditional method of animal classification. उसे क्या बोलते थे? Traditional method of animal classification. Traditionally depend upon the presence or absence of notochord. The animal kingdom was divided into two groups. One is a non-chordates and second is a chordates. देखिए notochord बहुत important था, उसके ऊपर एनिमल का क्लासिफिकेशन होता था ट्रेडिशनल मेथड से, मीन्स ओल्डन डेज. So now what is the basically notochord? Notochord is a long structure. Okay, एक long structure होता है notochord, ठीक है, which is present in the animal body. जिसमें notochord होता है उसे बोलते हैं chordates. जो एनिमल्स में notochord होता है उसे बोलते हैं chordates. जिस एनिमल्स में notochord नहीं होता है उसे बोलते हैं नॉन chordates. ठीक है, ह्यूमन हम लोग chordates में आते हैं क्योंकि हमारे पास notochord है. ठीक है, तो बेसिकली notochord क्या है उसका डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिया है, आगे देखें, ये देखिए, यू कैन सी हियर, सी दिस वन. सी notochord इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द एनिमल बॉडी. देखिए जनरली notochord कहाँ होता है, एक तो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, वो देख सकते हैं आप यहाँ पे, दिस वन. ओके, यू कैन सी दिस वन, दिस इज अ notochord, आप देख सकते हैं. ठीक है, दिस इज अ notochord जो जनरली एनिमल की बॉडी में होता है और वो डोर्सल साइड पे होता है. व्हाट इज डोर्सल? डोर्सल मतलब बैक साइड, पीछे की तरफ, पीठ की तरफ होता है. ठीक है, notochord जनरली. ओके, एंड इट कीप्स द नर्व टिश्यूज आइसोलेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी. होता क्या है कि notochord इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ बॉडी, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है बॉडी की, ह्यूमन बॉडी में notochord किस में कन्वर्ट हो जाता है, जनरली स्पाइनल कोड में. ठीक है, स्पाइनल कोड और ब्रेन में, वो ब्रेन में कुछ हिस्सा जाता है और बाकी का स्पाइनल कोड बन जाता है इसका. Okay, so we don't have notochord, but it has been converted, notochord has been converted into spinal cord. ठीक है, as the body developed, so notochord get converted into spinal cord. ठीक है, so indirectly notochord is also present in a body. तो यहाँ पे लिखा है clearly कि it keeps the nerve tissue isolated from the remaining body. Isolated means वो अलग रखता है. nerve tissue जो होते हैं हमारे, जो spinal cord होते हैं, ठीक है, spinal cord एकदम अलग रखा जाता है बाकी सब से. Okay, it keeps isolated. Okay, isolated means अलग रखना. Correct? So this is there, this is the definition of the notochords. So now let us come back to our topic. Now here you can see, first we'll talk about the non-chordates जिसमें notochords नहीं होते. First, body is non-supported by the rod-like notochord, मतलब इसमें notochord presence नहीं होते. Second, pharyngeal cells are present, absent. Now what is the गिल स्लिट्स? नाउ देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो माउथ होता है, ठीक है, वी हैव टू पाइप्स बेसिकली, विंड पाइप एंड फुट पाइप. ओके, बट इनिशियली इफ़ यू सी द माउथ एंड द जो मुंह होता है और गला होता है, ठीक है, वो अंदर जाके एक हो जाता है और वहाँ से वो जो पार्ट होता है वहाँ से दो पाइप है, एक तो फुट पाइप होता है और एक विंड पाइप होता है. तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से फुट पाइप और विंड पाइप निकलता है, वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स. ठीक है, तो जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं एनिमल्स, इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं होते. थर्ड, नर्व कोड इफ प्रेजेंट इट इज़ ऑन द वेंट्रल साइड, इट इज़ सॉलिड एंड पेयर. अगर नर्व कोड होते हैं, ठीक है, तो वो वेंट्रल साइड मतलब पीछे आगे की तरफ होते हैं. वेंट्रल मतलब पेट की साइड. ओके, तो नर्व कोड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल साइड पे, मतलब आगे की तरफ, फ्रंट साइड. ओके, विच इज़ कॉल्ड एज स्टमक साइड, एंड इट इज़ जनरली सॉलिड एंड पेयर्ड. जबकि कॉर्डेट्स में क्या होता है कि बैक साइड होता है, ठीक है, पीछे की तरफ होता है और वो होलो होते हैं. ठीक है, ये भरे हुए रहते हैं, जबकि हमारे में वो होलो रहते हैं. फोर्थ, हार्ट इफ प्रेजेंट इट इज़ ऑन द डोर्सल साइड. यहाँ पे इनमें हार्ट कहाँ होता है, पीछे की तरफ होता है, बैक साइड पे. जबकि कॉर्डेट्स में, हम भी कॉर्डेट्स में आते हैं, ठीक है, ह्यूमन, तो हमारा हार्ट कहाँ होता है, वेंट्रल साइड पे होता है, छाती की तरफ होता है, राइट, फ्रंट साइड होता है. जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट कहाँ होता है,
पीछे की तरफ होता है, डोर्सल साइड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए नॉन कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड डिवाइडेड इनटू 10 फाइला। देखिए फाइलम एक होता है और फाइला एक से ज़्यादा, सिंगुलर फाइलम, प्लूरल फाइला। दोज फाइला आर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नाइडीरिया, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलहेलमिंथस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकिनोडर्मेटा एंड हर्मिकॉर्डेटा। इसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। ठीक है, चलिए नाउ विल स्टडी अबाउट द कॉर्डेट्स। देखिए फर्स्ट कॉर्डेट्स में क्या होता है कि बॉडी सपोर्टेड बाय द नोटोकॉर्ड, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। सेकेंड, फेरिन गिल स्लिट्स और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर द रेस्पिरेशन, ओके, लाइक ह्यूमन और दूसरे एनिमल्स में। ठीक है, या तो फेरिन गिल स्लिट्स होते हैं या तो लंग्स होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। नर्व कोड इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। यहाँ पे देखिए डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी मतलब नर्व कोड कहाँ होते हैं, डोर्सल साइड पे, मतलब पीछे की साइड पे होते हैं। ठीक है, हमारे में भी जो नर्व कोड होते हैं जो आगे स्पाइनल कोड कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो डोर्सल साइड पे होते हैं, मतलब पीछे की तरफ होते हैं और वो हॉलो होते हैं। जबकि नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, वो सॉलिड होते हैं। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। हार्ट कहाँ होता है, आगे की तरफ, स्टमक साइड पे, छाती की तरफ होता है। ठीक है, वेंट्रल साइड पे होता है। तो नोटोकॉर्ड का डेफिनेशन हमें देखा हम लोग ने अभी। चलिए नेक्स्ट, डू यू नो ऑल कॉर्डेट्स एनिमल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल फाइलम। अब कॉर्डेट्स के भी क्लासिफिकेशन है जो कि हम लोग को पढ़ना है ये चैप्टर में। एंड द नेम ऑफ द फाइलम इज फाइलम कॉर्डेटा। द फाइलम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। देखिए फाइलम, फिर सब फाइलम, ग्रुप, सब ग्रुप, इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है एनिमल्स का। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सब फाइलम, फाइलम आगे जाके सब फाइलम बन जाते हैं, जो कि वर्टिब्रेटा हैज़ फर्दर डिवाइड इनटू 6 क्लास। कौन से क्लास, साइक्लोस्टोमेटो, क्लास स्पीशीज, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड क्लास मैमिलिया। आगे ये चैप्टर में आपको सभी क्लास के बारे में भी आपको पढ़ना है। देखिए इस तरह से एक क्लासिफिकेशन आपको दिया है, ये देख लीजिए। देखा किंगडम एनिमिलिया डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट इज सब किंगडम जिसका नाम है नॉन कॉर्डेट्स, जिसके बारे में हम लोग ने देखा नॉन कॉर्डेट्स कैसे होते हैं और कॉर्डेट्स क्या होता है, सब किंगडम कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स के 10 फाइलम से इसके नाम अभी हम लोग ने देखा था, ये है। और कॉर्डेट्स में फाइलम कॉर्डेटा होता है। कॉर्डेटा इज डिवाइड इनटू 3, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। एंड वर्टिब्रेटा डिवाइड इनटू 6 क्लास, जिसके नाम ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर के जो टेबल है। ठीक है, जैसे साइक्लोस्टोमेटो, पिशियस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया। सबके बारे में ईच क्लास, ईच फाइलम, ईच सब फाइलम you have to study in this chapter. Okay, this system of animal classification was in practice till now. However, nowadays new system of classification is followed. We will study this new system of animal classification in brief. Brief means short में study करेंगे, बाकी डिटेल बहुत है लेकिन आपके सिलेबस में शॉर्ट में आपको सब explanation किया है। At present, according to the 5 kingdom of classification system Robert Whittaker, all multicellular animals are included in the kingdom Animalia. This system of classification based on some criteria like body organization, body symmetry, body cavity, germinal layers, segmentation, etc. ठीक है, खाली यही क्लासिफिकेशन नहीं है, और भी क्लासिफिकेशन है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, टू स्टडी द डीप स्टडी अबाउट द एनिमल्स। ओके, वही क्लासिफिकेशन अब ये हम लोग यहाँ पे करने वाले। ओके, सो पहला क्राइटेरिया है फॉर द न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देखिए ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वही होता है कि हाउ डज द बॉडी डेवलप इनिशियली। तो यहाँ पे देखिए बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ द सेल्स, मीन्स ऑल द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स की बॉडी है वो सब किससे बनी है, सेल्स से बनी है। ओके, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स many cells are performing different function in the body, while in unicellular as the body is made up of single cell, all functions performed by the same cell only. देखिए क्या होता है कि if the body is made up of the multicellular, if more than one cell, okay, like us और दूसरे एनिमल्स के, तो वो उनके लिए अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बट अगर ऑर्गेनिज्म एनिमल की बॉडी एक ही सेल से बनी है तो एक ही सेल सब काम करता है। Body organization of unicellular animal is referred as a protoplasmic grade organization. In case of multicellular animal, if tissues are not formed, देखिए टिश्यू, what is a tissue? A group of cell.
ओके, परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इज कॉल्ड एज ए टिश्यू, राइट। तो मल्टी सेल्यूलर एनिमल में क्या होता है, इफ टिश्यूज आर नॉट फॉर्म their body organization is called cellular grade organization. Example phylum porifera. देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसे बोलते हैं, कि ये मल्टी सेलुलर एनिमल तो है, ठीक है, मल्टी सेलुलर एनिमल में तो आ गए, मतलब एक से ज़्यादा सेल तो है इसमें, लेकिन टिश्यू नहीं बनते, बहुत सारे सेल्स हैं इसमें, मतलब एक से ज़्यादा सेल है, तो ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, वहाँ तक पहुँच गए ये एनिमल्स, ठीक है, लेकिन उसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं होती, मतलब टिश्यूज़ नहीं बनते। तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन टिश्यूज़ नहीं बन रहे, ठीक है। जैसे एग्जांपल फाइलम पोरिफेरा। इन केस ऑफ सम एनिमल सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ which all their body functions are performed, such animals are show cell tissue grade organization. Example animal from phylum Cnidaria. देखिए अब क्या होता है कि अब नया स्टेज, इसके आगे वाला स्टेज, अब ये एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में इस तरह से होता है कि देर आर मेनी सेल्स एंड दे परफॉर्म सेल्स, टिश्यू भी बना लेते हैं वो, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ ग्रुप ऑफ सेल बन के वो एक टिश्यू भी बना देते हैं, ठीक है, बस। और इसके बाद वो कोई बॉडी ऑर्गन नहीं बना पाते, खाली टिश्यू बना के रख देते हैं, ओके, बस। सेल मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल है, उसे मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो सेल बन गया, ग्रुप ऑफ सेल बन गया, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, तो टिश्यू बन गए, ठीक है, उनके बॉडी में, बस। टिश्यू से ऑर्गन नहीं बन पाते, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे एनिमल्स कौन है, फाइलम नाइडीरा, ये जितने भी नाइडीरा में आते हैं, फाइलम नाइडीरा में आप देखेंगे आगे, तो ऐसे एनिमल्स सब नाइडीरा में आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 6.4 में सम एनिमल विद द प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी बताए थे ना, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स क्या है, जैसे अमीबा एंड पैरामोशियम, आप देख सकते हैं दिस अमीबा एंड दिस पैरामोशियम। नाउ व्हाट हैपन इन दिस केस, कि अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट, लेकिन जब उसको कुछ फूड पार्टिकल्स चाहिए, उसको जब खाने की ज़रूरत पड़ती है, ये देखिए ये फूड पार्टिकल्स है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अपने झूठे पाँव बनाता है, जिसे बोलते हैं सूडोपोडिया, मतलब झूठे पाँव, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लेग्स, ओके, फॉल्स लेग्स, दे मेक द फॉल्स लेग्स एंड दे अट्रैक्ट द फूड पार्टिकल्स इनसाइड, दे कैप्चर इट, सो दिस इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली पैरामोशियम इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनिज्म। अब आगे लेवल बढ़ता है, flatworms show tissue organs grade organization. In this type of organization, tissues are organized to form some organs. However, complete organ systems are not formed. देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं in this case कि बहुत सारे सेल्स तो है, ठीक है, और टिश्यूज भी बन रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेल्स है, यहाँ पे ये देखिए ये सेल्स है, ये सेल्स है, ऑस्टियम, ये छेद होता है जिसे ओपनिंग जिसे बोलते हैं ऑस्टियम, ओके, बहुत सारे सेल्स है, ठीक है, और ये टिश्यूज़ भी बना रहे, ठीक है, टिश्यूज़ के साथ ये ऑर्गन बना रहे, लेकिन पूरे ऑर्गन्स नहीं बनाते, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते, वो खाली ऑर्गन्स बना रहे, वो भी जैसे ये माउथ है, ठीक है, आउटलेट है, ऑस्कुलर जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो कुछ ही पार्ट जैसे माउथ बना रहा है खाली, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बना रहा है, ठीक है। ह्यूमन में हम लोग बोलते हैं कि ऑर्गन सिस्टम में क्या आता है, माउथ से लेके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ माउथ है, मीन्स एक ही ऑर्गन बन रहा है, बाकी सब ऑर्गन्स नहीं बन रहे, मतलब मल्टी सेलुलर है, टिश्यू बन गया, टिश्यू से ऑर्गन भी बन गया, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं बन रहे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट है जो लास्ट, जैसे यहाँ पे भी देखिए सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी देखिए आप इन दिस केस in this 6.6 figure, okay, jellyfish में कि this is a mouth, okay, this are the oral arms जहाँ से वो फूड पार्टिकल्स लेते हैं, this is the oral arms, ठीक है, ये टेंटिकल्स है जो प्रे को पकड़ने के लिए काम आता है, ठीक है, गोनेट्स मतलब ये सेक्स ऑर्गन्स है, गोनेट्स, ओके। सिमिलरली इन 6.7 फिगर अगर आप देखेंगे 6.7 में भी इन दिस ऑल्सो कि ये इसमें सेल्स है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन बन गया, बट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। देखिए होलो स्पेस है, ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको, जो मैंने कलर कर रहा हूँ वो होलो स्पेस है, ठीक है।
और उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, सिर्फ माउथ है, गैंग्लिया जिसे बोलते हैं, ठीक है। आइस पर माउथ यहाँ पे है, सॉरी, ये माउथ है, ठीक है। दिस इज द फेरिंग्स, दिस इज द नर्व कोड, ओके, प्रेजेंट। सो इन दिस वे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लानेरिया। तो कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम नहीं बन रहा है, इसीलिए इसे कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको समझा कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ओके। सो दिस इज अ डीप स्टडी विच इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल. Next is about the body symmetry, okay, so that we'll study in the next lecture, okay. Thank you so much.